देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी गए थे, जो मिस्टर अग्रवाल थे, उनके घर पर रहने के लिए। और उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि ये कौन, कैसे सन्यासी हमारे साथ में रहेंगे आकर, लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बाद में इनकी वाइफ ने सोचा था कि लोग इस तरह से खुद इनको देखकर स्पेकुलेट करें, इससे अच्छा ये होगा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को पता लगे कि प्रभुपाद जी है कौन। तो उन्होंने आर्टिकल छपवाया था, तो हमने इस तरह से देखा था जो भी उनका आर्टिकल था। बाद में वो क्या सोच रहे थे कि ये जो सन्यासी है यहाँ अमेरिका आए हैं ताकि अपनी पुस्तकों को बेचकर कुछ धन अर्जित कर सके। बस यही इनका मोटिव है यहाँ पे आने का, यही था इनका मोटिव आने का। तो इसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे। सैली, जो उनकी वाइफ थी। इट वॉज क्वाइट एन इंटेलेक्चुअल ग्रुप दैट वी वर इन and they were fascinated by him. They hardly knew what to ask him. They didn't know enough. This was just like a dream out of a book. Who would expect to meet a Swami in someone's living room in Butler, Pennsylvania? It was just really tremendous. In the middle of middle class America, my parents came from quite a distance to see him. We knew a lot of people in Pittsburgh and they came up. This was a very unusual thing having him here, but the real interest showed in him was only as a curiosity. He had a typewriter, which was one of his few possessions, and an umbrella. That was one of the things that caused a sensation, that he always carried an umbrella. And it was a little chilly. He was balding, so he always wore this hat that someone had made for him, like a swimming cap. It was a kind of sensation. And he was so brilliant that when he saw someone twice, he knew who they are. He remembered. He was a brilliant man. Or if he met them in our apartment and saw them in a car, he would remember their name and he would wave and say their name. He was a brilliant man. All the people liked him. They were amazed at how intelligent he was. The thing that got them was the way he remembered their name and his humorous way. He looked so serious all the time, but he was a very humorous person. He was forbidding in his looks, but he was very charming. पूरा पढ़ लेते हैं एक बार. He was the easiest guest I have had in my life because when I could not spend time with him, he chanted. And I knew he was perfectly happy. When I could not talk to him, he chanted. He was so easy, though, but because I knew he was never bored. I never felt any pressure or tension about having him. He was so easy that when I had to take care of the children, he would just chant. It was so great. When I had to do things, he would just be happy chanting. He was a very good guest. When the people would come, they were always smoking cigarettes, but he would say, "Pay no attention. Think nothing of it." That's what he said. Think nothing of it. Because he knew we were different. I didn't smoke in front of him. I knew I was not supposed to smoke in front of Gopal's father. So I sort of considered him the same. He didn't make any problems for anybody. तो अब जो उनकी वाइफ थी, उन व्यक्ति की, जिनके घर पर प्रभुपाद जी रह रहे थे, वो ये सारी बातें कह रही हैं. एंड ही इज एक्चुअली प्रेजिंग श्रीला प्रभुपाद. प्रभुपाद जी की प्रशंसा वह कर रही है प्रभुपाद जी के आचरण को देखकर. ठीक है. सो ये देखकर मतलब उनको थोड़ा
वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी कि उनके ग्रुप में जो भी व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद जी को देखकर बड़े आकृष्ट होते थे। जैसे आप सोचिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आकर रहे, जिसके विषय में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मतलब आपका जैसा घर में माहौल है उससे बिल्कुल डिफरेंट। तो बाहर कोई ऐसे ही सोच लीजिए कोई वेस्टर्न कंट्री का ही कोई व्यक्ति है, कोई भी वो हो सकती है या कोई माता जी हो सकती है, कोई प्रभु जी हो सकते हैं और वो आकर आपके घर में रहे। सोचिए आपके घर अगर आप किराएदार रखते हैं तो किराएदार आपके कोई फॉरेनर आ गए, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं हो जाएगी कि मतलब दूर-दूर भी नहीं दिखता है कि कोई फॉरेनर जो है वेस्ट से कोई व्यक्ति इस तरह से किराए पर आकर रहे। मैंने तो आज तक नहीं देखा हमारे आस-पास तो और लोगों के रहते होंगे। पर आप सोचिए आप ही के घर में कोई किराए से फॉरेनर आ जाए, तो सबका सब सभी का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। इट वाज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम आउट ऑफ अ बुक। बिल्कुल स्वप्न की तरह था। किसने सोचा था कि एक स्वामी जी बटलर के किसी के शहर ये जो शहर है इसमें किसी के घर के लिविंग रूम में आकर रहेंगे। किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था इस विषय में सपने में भी। तो ये सबके लिए बहुत ही आश्चर्यचकित बात थी और इस तरह से लोग उनके घर पे आया करते थे स्वामी जी को देखने के लिए कि ये व्यक्ति कौन है, किस कारण से यहाँ आए हैं। यहाँ तक कि ये महिला बता रही है कि इन्हीं के घर वाले, इनके पेरेंट्स भी बहुत दूर से ट्रैवल करके इनके घर तक आए स्वामी जी को देखने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग आया करते थे और लोग उनको नहीं जानते थे कि ये कौन है, क्या है। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानने के लिए बहुत उनको इंटरेस्ट सबको आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है, अजीब से है, पूरा दिखने में भी अजीब से। जैसे मुझे इससे रिलेटेड एक मूवी याद आ रही है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं रख रही हूँ, बट मुझे बता देती हूँ मैं। आपने देखी होगी कौन सी मूवी है वो जिसमें वो एक एलियन आ जाता है कहीं से, जादू होता है उसका नाम शायद। तो वो जो व्यक्ति होता है उसके दोस्तों को पता लगता है जब एकदम से उसको देखते हैं तो सारे दोस्त एकदम मतलब देखकर आश्चर्यचकित नहीं हो जाते। एनीवेज मैं उसकी याद में दिलाना चाहती हूँ आपको। इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि किसी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं, कोई अलग से ही व्यक्ति कहीं से रहने आ रहे हैं, तो सबके लिए एक कुछ सेलिब्रिटी वाला कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस समय प्रभुपाद जी के पास में अपना एक टाइपराइटर था, व्हिच वाज़ वन ऑफ हिज़ फ्यू पोज़ेशंस। कुछ ही चीज़ें थी और हमेशा उनके हाथ में छाता रहता था। कहीं पर भी वे जाते तो अपने साथ छाता ज़रूर लेकर जाते। उसका कारण मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और वहाँ पर क्योंकि थोड़ी ठंड थी एंड ही वाज़ बाल्डिंग मतलब उनके बाल नहीं थे, तो हमेशा एक हैट पहना करते थे। तो ऐसा होता है जिनके जो बाल वगैरह नहीं रखते हैं, तो उससे सर में और ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इस वजह से पीपल ऑलवेज़ वियर सम कैप और स्टफ लाइक दैट। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हमेशा एक हैट पहना करते थे जो एक स्विमिंग कैप की तरह दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह से बताया जा रहा था। आगे अब वो अपना और आश्चर्य प्रस्तुत कर रही हैं दैट ही वाज़ अ ब्रिलियंट मैन। कैसे? क्योंकि हमेशा जब भी वे किसी व्यक्ति से दूसरी बार भी मिलते, तो अब यहाँ पे मूवीज़ के नाम मत बताइए, मैंने नहीं देखी मूवी, मुझे याद भी नहीं रखनी है। बट येस, क्या बात चल रही थी? जब भी प्रभुपाद जी किसी को दूसरी बार भी देखते थे, तो तुरंत उनको याद आ जाता था कि ये वो व्यक्ति है, उनसे वे मिले हैं। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आज मैं पढ़ रही थी। श्रीमान श्रुति कृत प्रभु जी, उनका ऐसे कुछ नाम है।
तो हाँ, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं वो बेसिकली। तो उसमें उस आर्टिकल में उन्होंने क्या बताया कि एक बार, मतलब काफ़ी बार हमेशा ही प्रभुपाद जी को, भक्तों को, जो गृहस्थ हैं उनके यहाँ से फ़ीस्ट के लिए इन्विटेशन आते थे, प्रसादम के लिए। तो एक बार गए थे प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ में, और भी भक्त थे साथ में, तो उनके साथ में फ़ीस्ट के लिए गए थे। और प्रभुपाद जी हमेशा अकेले ही प्रसाद पाया करते थे अपने अलग रूम में, अकेले में। तो उस समय सबके साथ में इस तरह से प्रभुपाद जी ने प्रसाद लिया था, और किस तरह से प्रभुपाद जी प्रसाद पा रहे थे, उनका अंदाज देखकर ही ये जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, वो देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे। मतलब बहुत अलग ही अंदाज था प्रभुपाद जी का, फिंगर से कैसे कैसे च्यू, जो भी च्यू वगैरह कर रहे थे, ये सारी बातें उसमें लिखी थी। तो आगे जाके क्या था कि कुछ जो भक्त थे वो प्रसादम में थोड़ा कुछ कमी निकाल रहे थे, कि ऐसे है, वैसे है, जो पूरी है वो घी में नहीं तली गई है, तेल में तली गई है। तो प्रभुपाद जी शांति से बैठकर अपना प्रसाद पा रहे थे, एंड ही वॉज नॉट लुकिंग एनीवेयर। ऐसा वो जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनका कथन था, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे कि प्रभुपाद जी किसी की तरफ भी नहीं देख रहे थे, उनका ध्यान बस आराम से अपना प्रसाद पाने पर था। लेकिन बाद में जब इस तरह से डिस्कशन हो रहा था भक्तों के बीच में कि प्रसादम में ऐसे कुछ कमी थी, ये था, वो था, तो प्रभुपाद जी पॉइंटेड आउट, जो भक्त इस तरह से कमी निकाल रहे थे, उन्होंने कितना क्या खाया, किस पोर्शन में क्या खाया, कितनी पूड़ी खाई, कितना क्या खाया, प्रभुपाद जी वॉज टेलिंग इट एग्जैक्टली। तो सब बहुत हैरान हो रहे थे। जिस व्यक्ति ने जो खाया उसको खुद को भी याद नहीं था कि मैंने कितनी मात्रा में खा लिया, ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, बट प्रभुपाद जी एग्जैक्टली बता पा रहे थे इस तरह से। तो ये बात मैं क्यों बता रही हूँ कि दिखने में लग सकता है कि प्रभुपाद जी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या, लेकिन ही वॉज वेरी ब्रिलियंट। सभी चीजों का उनको, मतलब एक जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी पॉसिबल नहीं है, जो परफेक्टनेस नहीं होता है, वो परफेक्टनेस सब प्रभुपाद जी में है। जैसा कि यहाँ पर ये महिला भी अपना आश्चर्य प्रस्तुत कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को प्रभुपाद जी देखते तो दूसरी बार कभी उससे मिलना होता तो हमेशा उनको याद रखते प्रभुपाद जी, उन्हें याद रहता कि हाँ मैं इनसे मिला था। कई बार अगर किसी व्यक्ति को वो अपार्टमेंट या कार में से दोबारा से देखते तो उनको उनका नाम तक याद रहता था। जैसे मेरे साथ में प्रॉब्लम है, मैं मुझे प्रॉब्लम है, पहले तो बहुत ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे लोगों की शक्ल याद नहीं रहती थी कई बार, और नाम भी याद नहीं रहते थे। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति से पहले जिनसे संपर्क था, तो उनके साथ में जो टाइम स्पेंड किया था वो सब याद रहता है, पर वो व्यक्ति की शक्ल थोड़ी ब्लर ब्लर हो गई माइंड में, नाम तो बिल्कुल ही भूल गई मैं। मतलब कभी-कभी याद आ जाता है ताकि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सके। तो ऐसा हो ही जाता है, इज़ इट नॉट? लेकिन प्रभुपाद जी के साथ में ऐसा नहीं था। हाँ, ठीक है कि एक बात बता रहे हैं, उनको फेस याद रहता है और नाम भूल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए आप, तो सब लोग इस तरह से देखकर भी आश्चर्यचकित रहते थे कि दे वर अमेज्ड एट हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। तो इस तरह से सबका नाम वे याद रखते थे, कभी उनको देखते तो हाथ ऐसे करते, उनका नाम लेते, तो सभी जो लोग थे वो इस तरह से अमेज्ड रहते थे कि प्रभुपाद जी किस तरह से सबको याद रखते हैं। एक बार, हाँ, आगे बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी हमेशा दिखते तो बहुत सीरियस थे, लेकिन वे वास्तव में ही वॉज वेरी ह्यूमरस पर्सन, मतलब जो मजाक वगैरह करते हैं।
सो यस, ये सारी चीजें बताई जा रही है। आगे ये बता रही है महिला कि ही वॉज द इजिएस्ट गेस्ट, मतलब शुरू में इन लोगों को जिस तरह से परेशानी हो रही थी कि स्वामी जी हैं, ऐसा देखिए होता ही है, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है तो जिनके घर पे आता है तो उसको थोड़ा बोझा सा लगता है कि अरे ये कौन आ गए, कब जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। जैसे यहाँ पर ऐसे, मतलब मुझे कुछ नहीं होता ऐसे, पर अगर घर में कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो बिना मतलब की फालतू बातें, बस फर्जी की बातें कर रहा है, कुछ काम धंधा उसके पास में नहीं है, तो फिर दिमाग में आता है कि ये कब जाएंगे, ये क्यों आए यहाँ पर, किन्होंने बुलाया इनको यहाँ पर। सो दे वर फीलिंग सेम फॉर श्रीला प्रभुपाद, बट अब शी हैज सम अदर व्यूज, डिफरेंट व्यूज कि नहीं, ही वॉज द इजिएस्ट गेस्ट आई हैव हैड इन माई लाइफ। क्योंकि ज्यादातर टाइम मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुछ प्रभुपाद जी कुछ इंटरफेयर वगैरह करते हैं, वो अपना ही चैंटिंग वगैरह में रहते हैं, और उनको देखकर स्पष्ट मालूम चलता था कि ये बोर नहीं हो रहे हैं, ही इज नॉट गेटिंग बोर्ड। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आप देखेंगे स्पेशली बुढ़ापे में क्या होता है, व्यक्ति के पास में ना तो जॉब वगैरह होती है कुछ करने को, ना उसका कुछ शरीर वगैरह काम करता है, तो वो बेचारा परेशान ही रहता है। जैसे हमारे पास में ही रहते हैं एक अंकल जी, अभी तो वो होपफुली नहीं है यहाँ पर हाँ वो थोड़े, अब उनकी थोड़ा शरीर भी साथ नहीं देता है, तो खाने पीने की तो उनकी खूब इच्छाएं होती है, पर डॉक्टर ने सब कुछ बंद कर रखा है तो वो नहीं खाते हैं। पहले तो मैं उनको प्रसाद देती थी, अब तो मैं कुछ उनको दे भी नहीं पाती हूँ। वो फ्रूट्स देते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए, पर मैं उनको कुछ नहीं दे पाती, तो वो थोड़ा परेशान ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब कुछ काम तो है नहीं, तो इधर उधर घूमना, कैसे ना कैसे करके कुछ मन लगा लेना। बट यहाँ पर ये बता रही है कि प्रभुपाद जी को देखकर बिल्कुल देखते ही समझ आ रहा था ही वॉज परफेक्टली हैप्पी। अगर उनसे कोई बात करने को नहीं होता था या कुछ नहीं, तो बस वो अपना चैंटिंग वगैरह करते थे। और कभी भी ऐसा उनको देखकर नहीं लगा कि वो बोर हो रहे हैं, अरे कुछ करने को नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो कुछ हो जाए टाइम पास करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और साथ में वे रह रहे थे, तो हमें कभी भी ऐसा कुछ प्रेशर वगैरह या टेंशन वगैरह फील नहीं हुई थी। शुरू में ये लोग ऐसा सोच रहे थे, बट नाउ एज प्रभुपाद जी वॉज लिविंग विथ हिम, आप देख रहे हैं हमने किया था डिस्कस आगे जाकर, प्रभुपाद जी में आसक्त होने लगी है, और ये यहाँ पर इनकी आसक्ति प्रस्तुत कर रही है कि नहीं, दे आर गेटिंग अटैच टू श्रीला प्रभुपाद। क्योंकि देखिए भक्तों का जो आचरण है वो होता ही ऐसा है। एक सामान्य भौतिकतावादी जो व्यक्ति है, उसके केंद्र में इंद्रिय तृप्ति होती है, क्योंकि तो वो बस सामने वाले को एक्सप्लॉइट ही करेगा, और एक्सप्लॉइट करेगा सामने वाला परेशान होएगा। बट डिवोटीज आर नॉट लाइक दैट। सो यस, ये चीज भी आप खुद भी अपने में ये चीज देख ही पाते होंगे कि हमारी वजह से किसी सामने वाले को कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, इवन वी डोंट वांट दैट। एटलीस्ट मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि सामने वाले के ऊपर मैं कुछ बोझा बनूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज कि सामने वाला कुछ समझे, जैसे मैं कि सामने वाले से कुछ हेल्प वगैरह भी मुझे चाहिए या कुछ। सो आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि सामने वाला ना समझे मैं उस पर बोझ हूँ, या समझ रहे हैं आप सारी बातें। तो ये सारी चीजें हैं। सो हाँ, इस तरह से अब उन लोगों को काम करना होता था, तो वो बस अपना खुशी से चैंटिंग वगैरह करते थे। प्रभुपाद जी ही वॉज अ वेरी गुड गेस्ट। जब लोग उनके पास में आते थे तो हमेशा सिगरेट पीते थे, तो ये आप देखेंगे पाश्चात्य देशों में सिगरेट्स वगैरह या ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जो है ये इस तरह से, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उनको पानी वगैरह ऑफर करते हैं,
बाहर के देशों में इस तरह से होता है, इफ दे आर कमिंग टुगेदर सो दे विल स्मोक सिगरेट्स। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कहते हैं कि नहीं, आप ध्यान दीजिए, इस विषय में आप मत सोचिए, इस विषय में आप मत सोचिए, मतलब ये सिगरेट वगैरह पीने के लिए विषय में आप मत सोचिए, बिकॉज ही न्यू वी वर डिफरेंट। फिर आगे ये माता जी कह रही हैं कि मैं उनके सामने नहीं स्मोक करती थी। मतलब आप देख रहे हैं ना, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि बाहर के जो देश है वहां पर स्त्रियों के लिए भी ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सारा जो वेस्ट कल्चर है भारत में भी धीरे धीरे आ रहा है। अब यहाँ पर भी लड़कियां दिखती है कि नहीं? इज इट नॉट? और इस लोगों को ये सारी चीजें लोग समझते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं तो हम बैकवर्ड कहलाएंगे, दैट वी आर गोइंग बैकवर्ड, वी आर नॉट एंजॉइंग लाइफ। बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। बैकवर्ड जा रहे हैं। किस चीज में बैकवर्ड जा रहे हैं? अ, मतलब अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने की जगह यू आर गोइंग फॉरवर्ड टू हेल। इस तरह से सच में लोग सोचते हैं कि अगर हम इफ वी आर नॉट गोइंग इन पब्स क्लब्स एंड हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, सो हमारा मजाक बनाया जाएगा, अरे तुम तो गांव के आदमी हो, यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पर भी बता रही हैं कि प्रभुपाद जी के सामने तो वो नहीं करती थी ये सब, और उनको बताया गया था उनके हस्बैंड के थ्रू कि उनको अपने ससुर के सामने भी नहीं करना है, क्योंकि उनके हिज फादर इन लॉ वाज आल्सो एन इंडियन मैन। तो हाँ, वो इसी तरह से प्रभुपाद जी के सामने भी वो सिगरेट वगैरह नहीं पीती थी। लेकिन हाँ, एक और बात यहाँ क्या बताई जा रही है, दैट ही वॉज नॉट मेकिंग एनी प्रॉब्लम फॉर एनी वन। वहां पर किसी लोग को ऐसे डिस्टर्ब वगैरह नहीं कर रहे थे। इसका मतलब आप समझ रहे क्या है? अभी आगे समझेंगे, देखिए। वन इवनिंग अ गेस्ट asked Prabhupada, "What do you think of Jesus Christ?" And Prabhupada replied, "He is the Son of God." Then he added that he, the guest, was also a son of God. Everyone was interested to hear that the Swami accepted Jesus Christ as the Son of God. पर अभी देखेंगे कुछ लोग होते हैं वो जीसस क्राइस्ट को गॉड सत्यापित करने में लगे रहते हैं, जबकि उनको पता है दैट जीसस क्राइस्ट इज सेइंग दैट आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। बट उसके बाद में भी वो पता नहीं क्यों इस तरह से बोलते हैं कि नहीं, इसका कुछ और मीनिंग है, जीसस क्राइस्ट इज गॉड, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो मैसेंजर हूँ। तो हाँ, लोग इस तरह से कहते थे कि आप जीसस क्राइस्ट के विषय में क्या सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बताते कि वो भगवान के बच्चे हैं। जो भी गेस्ट उनके पास आते तो वो इस तरह से कॉन्वर्जेशन को डायरेक्ट करते कि आप भी भगवान के बच्चे हैं। तो सबको उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। ये भी अच्छा लगा कि वो जो प्रभुपाद जी हैं, स्वामी जी, वो जीसस क्राइस्ट को भगवान के बच्चे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। गोपाल, his intent was not to have you change your way of life. He was not telling anybody they should be vegetarian or anything. All he wanted you to do was to follow what you are, but be better. He didn't stress that we should give up many things. इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी अभी 2 दिन पहले, कि कृष्ण भावनामृत में हमें कुछ छोड़ना नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमें चीजें फॉलो करनी है। जैसे जैसे हम फॉलो करेंगे अपने आप जो गलत चीजें हैं वो छूटती जाएंगी। बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट था ये, कि जैसे व्यक्ति जप करने लगता है सो ही इज फॉलोइंग, जप करना, सुबह उठना है, जप करना है, भगवान की कथा सुननी है, और भगवान को भोग लगा के खाना खाना है। अब देखिए, वो जब ये चीज फॉलो कर रहा है कि भगवान को भोग लगा के खाएगा, तो अपने आप जो
नहीं खाने वाली वस्तुएं वो छूट गई कि नहीं? क्योंकि अनियन गार्लिक और जो भी फालतू की चीजें होती है उनका तो भगवान को भोग नहीं लग सकता है। सो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी फॉलो, और अपने आप जो गलत चीजें हैं वो अपने आप छूट जाती है। तो यही बात ये व्यक्ति भी कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो आपको कह रहे हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वेजिटेरियन बन जाइए, ये कर दीजिए। नहीं, he didn't stress that we should give up many things. तो ये सारी चीजें हैं। Srila Prabhupada followed a regulated daily schedule. Every morning he would walk the 6 or 7 blocks from the YMCA to Sterling Apartments, arriving there about 7. When he had first landed in New York, he had in his luggage a large bundle of dried cereal, similar to rolled oats. This supply was enough for several weeks, and every morning at breakfast, he would take some with milk. At 7:45, Gopal would leave for work, and around 9:30, Prabhupada would start preparing his lunch in the kitchen. He made his chapatis by hand without even a rolling pin. He worked alone for 2 hours while Mrs. Agarwal did housework and took care of her children. At 11:30 he took prasadam. तो प्रभुपाद जी की दिनचर्या यहाँ बताई जा रही है वहां पर, बिल्कुल रेगुलेटेड अपना स्केड्यूल प्रभुपाद जी फॉलो करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी अपने आचरण से ये प्रस्तुत करते हैं कि हमें भी ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। देखिए, हम सुनते हैं कि भक्ति में सत्वगुण इंपॉर्टेंट है, और सत्वगुण का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेगुलेशन। चाहे से आप थोड़ी मात्रा में ही करें, पर आप रेगुलरली उसको करें। जैसे काफी सारी चीज ये सच में हेल्प करता है। जैसे काफी सारी चीजें हैं, मैं भक्ति से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पा रही थी। पर मैंने ट्राई किया कि मैं चाहे से थोड़े समय ही उसको करूं, पर मैं करूं। जैसे हारमोनियम था, तो उसको मैं सोचती थी मैं प्रैक्टिस करूंगी, पर मैं नहीं कर पाती थी। पर मैंने सोचा कि 10-20 मिनट से स्टार्ट करते हैं, और 10-20 मिनट तो बहुत इजीली व्यक्ति निकाल लेता है। ऐसी भगवत गीता की क्लासेस अभी हमने जो शुरू की थी, प्रभु जी के हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसमें अब 1-1 घंटे की क्लास सुनना तो लोगों के लिए बहुत भारी हो जाता है। सो वी स्टार्टेड इट फ्रॉम 20 मिनट्स, कि 20-20 मिनट व्यक्ति करे, रेगुलरली उसको करे। कोई भी व्यक्ति है, माला जप करना वो स्टार्ट करता है, तो उसको शुरू में ही नहीं कह दिया जाता कि आप 16 माला करिए। 1, 2, 3 कितने भी वो राउंड कर रहा है, लेकिन उसको रेगुलरली करे। सो रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेसिंग। तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। रेगुलेशन का मतलब आप समझ रहे ना, रेगुलरली डेली कंसिस्टेंटली करना करना, बस लगे पड़े, और तभी जीवन में परिवर्तन आता है। रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे से हम थोड़ी मात्रा में उसको फॉलो करें। तो प्रभुपाद जी ही वॉज फॉलोइंग अ रेगुलेटेड डेली स्केड्यूल। हर सुबह 6 to 7 ब्लॉक्स प्रभुपाद जी चला करते थे। ही यूज टू वॉक। फिर 7 बजे तक, मतलब यहाँ से मालूम चल रहा है कि वो सेपरेटली रह रहे थे, मतलब उस अपार्टमेंट से थोड़ा दूर। तो हाँ, उस अपार्टमेंट तक वो 7 बजे तक आ जाते थे। और जब पहले प्रभुपाद जी ने 6 और 7 ब्लॉक्स का मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे एक कॉलोनी में, कॉलोनी या हाँ एक कॉलोनी टाइप में, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स होती है, तो वो एक बिल्डिंग पूरा ब्लॉक कहलाता है। तो इस तरह से ही 6 to 7 ब्लॉक्स का मतलब, किस तरह से जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, तो वो 6 to 7 ब्लॉक्स बिल्डिंग की दूरी पर
वो उनका दूसरा यहाँ पर जो अपार्टमेंट आता है। तो इस तरह से वे 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाते। व्हेन ही हैड फर्स्ट लैंडेड इन न्यूयॉर्क, पहली बार जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क उतरे थे, तो उनके पास में उनका लगेज था, जिसमें उनके पास में बहुत सारी ड्राइड सीरियल थी। बताया जा रहा है रोल्ड ओट्स की तरह। मतलब सीरियल का मतलब ऐसे होता है अ, दाल वगैरह जो होती है, पर एग्जैक्टली दाल नहीं है ये। ओट्स तो आप जानते ही हैं, उसमें ओट्स में पोहा समझ लीजिए आप, ड्राइड सीरियल मतलब पोहा समझ सकते हैं। तो हाँ, इस तरह से उनके पास में था बहुत सारा। और इस तरह से कुछ हफ्तों तक, काफी हफ्तों तक वो उनका चल जाता था। हर सुबह वे ब्रेकफास्ट लेते, ब्रेकफास्ट में वो दूध लिया करते थे, और 7:45 पर, मतलब 45 मिनट बाद, जो ये जो व्यक्ति हैं ये अपने काम के लिए निकल जाते, और प्रभुपाद जी 9:30 के करीब लंच बनाना स्टार्ट करते इन्हीं के किचन में। तो वो अपने हाथ से ही चपाती बनाते, बिना बेलन के, हाथों से ही रोटीज बनाते प्रभुपाद जी। एंड ही वर्कड अलोन फॉर 2 आवर्स, फिर 2 घंटे तक अपना जो भी काम वगैरह है वे करते। और यहाँ पर ये जो इनकी वाइफ है वो अपना घर का कुछ काम करती, अपने बच्चों का काम करती। एंड एट 11:30 ही टुक प्रसादम। तो मतलब कि यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 2 घंटे प्रभुपाद जी कुकिंग करते। देखिए आगे, Sally. When he cooked, he used only one burner. The bottom level pot created the steam. He had the दाल, ठीक है यार, ये जो सीरियल है ड्राइड दाल, ये दाल, ड्राइड सीरियल, ये दाल ही है। He had the dal on the bottom, and it created the steam to cook many other vegetables. So, for about a week, he was cooking this big, great big lunch, which was ready about 11:30. And Gopal always came home for lunch about 12. I used to serve Gopal a sandwich and then he would go back to work. But it didn't take me long to realize that the food the Swami was cooking we had enjoyed too. We would enjoy too. So he started cooking that noon meal for all of us. Oh, and we enjoyed it so much. तो डेफिनेटली 2 घंटे प्रभुपाद जी इस तरह से बनाते, तो वो सभी के लिए बनाते जो प्रभुपाद जी बना रहे थे, और डेफिनेटली भगवान को भी ऑफर करते प्रभुपाद जी। लिख रहा है यहाँ पर प्रसादम। तो यूजुअली ये जो माता जी हैं, ये 12 बजे इनके पतिदेव आते तो उनको सैंडविच बना के दे देती थी। तो उसमें जो क्या, सैंडविच बनाने में कितना टाइम लगता है, 5-10 मिनट में बना और हो गया। लेकिन आ, उनको मतलब बहुत ये देखकर भी बहुत अमेज रहती थी वो, कि प्रभुपाद जी किस तरह से 2-2 घंटे लगाते थे खाना बनाने में। 2-2 घंटे तक वे पकाते। और उन्हें भी जो प्रभुपाद जी बनाते वो बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली प्रभुपाद जी। आप सोच सकते हैं प्रभुपाद जी के हाथों का प्रसादम देवर हैविंग, व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून। ये चीज देखिए हमें याद रखनी चाहिए कि भगवान किस तरह से किसी को, किसके जीवन में कैसे माध्यम बना सकते हैं, वी डोंट नो दिस। जैसे आप खुद इस चीज को देखिए कि आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आपके घर वाले भी कुछ स्पेशल नहीं है, चाहे से वो भक्ति ना भी कर रहे हो? कैसे स्पेशल है कि आप भक्ति कर रहे हैं, और आपके घर वाले भी, उनके मतलब उनके घर में एक कोई व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है, तो उस एक व्यक्ति के कारण उनको भी भगवान की स्पेशल कृपा प्राप्त होगी। इस चीज को बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। आप अपनी कॉलोनी में ही देखिए, ज्यादा दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। किन्हीं के भी घर में कोई एक व्यक्ति भी ऐसे प्रामाणिक रूप से भक्ति करता हुआ आपको नहीं दिख रहा है।
सो दोज पीपल आर नॉट दिस मच फॉर्चुनेट। उनके घर में से कोई भी इतना लकी नहीं है कि उनके घर में कोई भक्त हो जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी भगवान की कुछ मर्सी प्राप्त हो। जैसे मैं खुद इस चीज पर देख रही थी कि घर वाले ठीक है अगर भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, पर फिर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में दे आर हेल्पिंग यू। आपको कुछ भी घर में कुछ भी आवश्यकता पड़ती है, आपकी भक्ति से रिलेटेड भी वो हो सकती है, तो घर वाले तो लाके देते हैं। भक्ति में आने नहीं थे तो ठीक है, पहले भी खाना वगैरह, सामग्री वगैरह, ग्रोसरी वगैरह आती थी। पर अब आप खुद भगवान के लिए बनाकर भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो वो सामान तो वही तो ला रहे हैं। तो किस तरह से भगवान किसको मीडियम बनाते हैं टू गिव हिज मर्सी? वी कांट अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए ये बात अगर समझ में आई तो अपने घर वालों पर कोई मतलब इस तरह से कोई गुस्सा नहीं करेगा कि ये मेरे घर वाले भक्त नहीं है, भक्त है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। नहीं, दे आर ऑल्सो स्पेशल, क्योंकि आपकी वजह से आप भक्ति कर रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो गेट स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा। और ऐसे फ्री फोकट में नहीं, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन सम वे। जैसे अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पे घर में बहुत सारे आलतू फालतू पौधे लग रहे थे। फूल भी आते थे लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, कुछ ना उसमें कुछ खुशबू आती ना कुछ। तो अब सब कुछ चेंज करके घर वाले सुंदर सुंदर फूल ले आए। अब वो जो फूल हैं, फूल मतलब पौधे, सुंदर सुंदर फूल के पौधे, फ्लावर्स, जैस्मीन, चंपका और जो भी अलग अलग तरह के होते हैं, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स जो भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। तो अब ये जो भी फूल है, पहले तो मुझे जाना पड़ता था, थोड़ा दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर में ही इतने सारे फ्लावर्स बहुत सारे खिलते हैं, तो फिर यहीं से मैं ऑफर कर पाती हूँ, टाइम भी मेरा थोड़ा बच जाता है उस कारण से। तो अब आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट वे में ये सेवा हुई कि नहीं। उन्होंने इस तरह से पौधा लाकर लगाए इतने सारे, तो अब वो पुष्प जो है वो भगवान को चढ़ेंगे। और मतलब बहुत सारे आप देखेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी अमेजिंग। आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं ये भी सोच रही थी कि ये पर्टिकुलर पौधा ही यहाँ पर घर में आया है, और मतलब कितने सारे पौधे होते हैं नर्सरी में, जहां पर भी पौधे वगैरह मिलते हैं, कितने सारे पौधे होते हैं, लेकिन एक उस पर्टिकुलर पौधे को ही चूज किया गया कि वो इस तरह से इस घर में जाएगा, और फिर उससे जो भी पुष्प प्राप्त होंगे वो भगवान की सेवा में जाएंगे। सो आई वॉज प्रभु जी एक जो कोट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस्कॉन में आया है तो शायद उसकी मुक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए उसे इस्कॉन में बुलाया। तो मैं इस तरह से सोच रही थी कि इस पौधे का भी टाइम आ गया है भगवान के धाम लौटने का, इस वजह से ही हैज केम, दैट प्लांट हैज केम हियर, और अब वो जो फूल है वो भगवान की सेवा में जाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से जब आप विचार करते हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी अमेजिंग। कहाँ इस तरह से हम पहले विचार करते थे बिना मतलब की बोरिंग लाइफ, फालतू की टेंशन कि ये जॉब करना है, ये शादी करना है, ये वो, ये इन्हीं सारी चीजों में तो व्यक्ति फंसा रहता है। बट व्हेन यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हर चीज का संबंध अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग डायमेंशन से भगवान से देखने का अ, मौका हमें मिलता है, विच इज वेरी एनलाइवनिंग। तो इस बात को याद रखिएगा, ये आज का टेक अवे पॉइंट है, दैट योर फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो स्पेशल। क्योंकि इसको प्लीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके। और रिश्तेदारों में भी हो सकता है, आपके आसपास में कॉलोनी है, फ्रेंड्स हैं, उनके घर में बेचारों की कोई भी एक व्यक्ति भी भक्त नहीं है जो समझ रहा हो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। सो दे आर नॉट दैट मच फॉर्चुनेट। मतलब मैं प्राउड करने को नहीं कह रही हूँ,
इस तरह से ये बात समझनी चाहिए ताकि हम अपने भाग्य की सराहना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से उन लोगों को प्रभुपाद जी के हाथों का प्रसाद मिल रहा था। कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। तो ठीक है, इसी से अब हम यहाँ पर रुकेंगे। Thank you so much for joining, and we will continue tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.